हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का दिस ऑन दिस सुपर असम यूट्यूब चैनल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। एंड गाइस, दिस इज दर्शन जैन, योर एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today we are going to start with our Unit 4 of partnership, retirement of a partner. We have already completed basics of partnership. Then we started and concluded with valuation of goodwill. Then we did admission of a partner. And now this is unit 4, which is retirement of partner. एडमिशन में 2 के 3 हो गए थे दोस्तों, अब यहाँ पे 3 के 2 हो जाएंगे. ठीक है. सो गाइस, लेट्स बिगिन द शो फॉर टुडे. फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं. बता देता हूं दोस्तों, फ्रॉम 11:30 AM to 12:30 PM डेली पार्टनरशिप हम लोग करने वाले हैं. Now this week from Monday to Saturday we are going to complete retirement of a partner, and then post Diwali we will complete our last 2 units of death of a partner and change in profit sharing ratio. So guys, I am expecting to conclude the syllabus by max 3rd November. ठीक है, 3 से 5 नवंबर के आसपास हो जाएगा दोस्तों खत्म. ठीक है. सो फ्रेंड्स, रिमेंबर 11:30 AM to 12:30 PM. From today onwards we are starting our most awaited batch, which is RTP, MTP and PYP batch, जहां पे हम लोग कवर करने वाले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ ICI in the form of revision test papers, mock test papers and previous year papers. In this particular batch, I will be coming live on Wednesday and Thursday from 3:30 to 5:30 PM, wherein I am going to cover RTP December 22 and mock test papers of June 22, Series 1 and Series 2. ऑल्सो गाइज, मच अवेटेड मिडनाइट रिवीजन सीरीज, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 27th of October ऑन अनअकैडमी प्लस. दोस्तों, इस बार जो मिडनाइट रिवीजन सीरीज होगा, इट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम टाइम 10 PM to 12 AM, बट दिस टाइम इट विल बी ऑन अनअकैडमी प्लस. ओके, यस. सो दोस्तों, 14th October तक ऑफर थी, 20% ऑफ मिल रहा था. एक्सपेक्टिंग, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ऑफर सून. मे बी फेस्टिवल ऑफर आपके लिए आ सकता है, बट द करंट प्राइजेस एज यू कैन सी आर अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन. यू कैन ऑल्सो बाय 2 month सब्सक्रिप्शन दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू जस्ट 8,100. You just need to apply my code DKJ10. You can also go for an iconic subscription, जहां मिलेगा आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. उसके प्राइजेस भी आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों. You can also go for a test series product, which is one of the most cost effective test series product in India, and for 3 months you will be ending up paying just 1350 rupees after applying my code, which is DKJ10. But I always suggest my students to go for the combo subscription. Reason is simple: whatever ये may be your result, your learning doesn't get affected. अगर आप पास होते हो तो यू हैव सी एंटर का सब्सक्रिप्शन, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू कैन नॉट सक्सीड, या फिर आप एग्जाम नहीं दे पाते हो, सो गाइज इट्स वेरी सिंपल, आपका सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन भी लाइव रहेगा. ठीक है. यस, सो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 45,000, दैट टू फॉर 24 मंथ, जिसमें आप आराम से आपका फाउंडेशन एंटर दोनों कंप्लीट कर सकते हो. डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड, इट्स DKJ10 whenever you are buying any subscription on the Unacademy platform. This is our super awesome result of June 22. Expecting the same with you. Expecting the same नहीं कहूंगा, इससे बेहतर आप लोग दे सकते हैं, इससे बेहतर हम लोग रिजल्ट चाहते हैं आपसे. More than 13 students scored 90+ marks in the last attempt. I'm expecting you guys to cross this number in a huge way. Yes, do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated channels for CA Foundation by Bahubali team. Do subscribe to this Telegram channel. More than 27,000 students have already subscribed to the channel and have been receiving link notes and updates. And guys, do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is CA_Darshan_Jain. Same is the ID on Telegram as well as Instagram. Now let's begin our topic: partnership, retirement of a partner. The great Shakespeare once said, नाम में क्या रखा है? Guys, the fact is, नाम में ही सब कुछ रखा है. Because whenever we read the name of the topic, we get the glimpse कि हमें इसमें क्या करना होगा. Now here the name of our topic is retirement of a partner. What is retirement? Non-existence of a partner in a partnership firm. ठीक है, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से एग्जिट हो रहा है, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ
पार्टनर। ठीक है, एडमिशन में 2 के 3 होते हैं, यहाँ पे 3 के 2 हो जाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम। तो दोस्तों अभी तक 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो दोस्तों मेरा ये एक्सपीरियंस है, यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, तो तीनों भी इंपॉर्टेंट है एंड मच ऑफ द पोर्शन विच इज रिलेटिंग टू पार्टनरशिप वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन एडमिशन। जैसे कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालना हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या होगा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होगा वी हैव ऑलरेडी डन। सो यहाँ पे सिर्फ जो नए फीचर्स है उतने ही हम लोग करने वाले हैं। ठीक, चलो लेट्स बिगिन वेरी वेरी क्विकली नाउ। हियर इज द बर्ड्स आई व्यू कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं लेट मी चेक कौन कौन आए हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य, खुशी, हर्ष, नील, सिमरन, एकनाथ, तनीषा, आदित्य, स्वरूप, गुड मॉर्निंग गाइस। युक्ता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। अनन्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नित्या गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग है नित्या, उठ जाओ बेटा नींद से। सर 9:45 वाला क्लास मिस कर रहा हूं, तो रिकॉर्डेड देख ले उसी टाइम पे जाके। हर चीज का सॉल्यूशन है यार सर, वो क्यों ऐसे करता है बेटा तू। चलो ओके गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अगेन, लेट्स बिगिन। क्या क्या पढ़ना है हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीनिंग, हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर, पार्टनर कैसे रिटायर होगा, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, treatment of goodwill, hidden goodwill, revaluation of assets and liabilities, treatment of reserves appearing in balance sheet, capital adjustment, disposal of amount due to retiring partner, and section 37 of the Indian Partnership Act 1932. So this is the entire content of this particular topic. Let's start one by one. ठीक, retirement of partner meaning, retirement of partner is one of the modes of reconstitution of firm under which an old partnership comes to an end and new one between the continuing partners, that is partners other than the outgoing partner, comes into existence. However, the firm continues its business. What is retirement? It is a form of reconstitution. ठीक है, पहले मान लो ए बी सी पार्टनर थे, वो एग्रीमेंट अब कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और अब नया एग्रीमेंट बनेगा बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए और बी अब कंटिन्यू करने वाले हैं एंड मिस्टर सी इज गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. So what is retirement of partner? Exit of any partner from the partnership firm. ठीक, नेक्स्ट, हाउ कैन अ पार्टनर में रिटायर, पार्टनर कैसे रिटायर करेगा. यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन लॉ. कैसे पार्टनर रिटायर हो सकता है. सो गाइस, पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स वेदर implied or expressed or in accordance with an express agreement by the partners or by giving notice in writing to all partners of his intention to retire in case of partnership at will. ठीक है दोस्तों, बीइंग अ लॉ पॉइंट मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा. आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन लॉ. ठीक, इधर ध्यान दे बेटा स्वरूप, लेक्चर में ध्यान दे स्वरूप. स्वरूपा, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर. जब भी कोई पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर नहीं होना चाहिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होना चाहिए. ठीक है, सो भाई क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होगी. द वेरियस मेथड दैट द वेरियस मैटर that needs adjustment at the time of retirement of partner are given below. Adjustment in profit sharing ratio. जब एडमिशन था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा. क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं. ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो. वेरी सिंपल. एडमिशन में आने वाला पार्टनर गुडविल लेकर आता था, रिटायरमेंट में जाने वाला पार्टनर गुडविल लेकर जाएगा. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वेरी सिंपल, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. क्या, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. हु इज गेनिंग, कौन गेन करेगा यहाँ पे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है,
रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, किसको मिलेगा? रिटायरिंग पार्टनर को यहाँ पे गुडविल का शेयर मिलेगा। और कौन बियर करेगा? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन होंगे? जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, सेम जो हमने एडमिशन में पढ़ा। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, सेम जो एडमिशन में पढ़ा हमने कि इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ना वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हो सकता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड करे कि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उनका कैपिटल सिंक्रोनाइज्ड रहे। दैट मींस देयर कैपिटल शुड बी in accordance with their profit sharing ratio, and accordingly guys they may adjust their capital by bringing in cash into the partnership firm or taking out the cash from the partnership firm. So guys, these are the activities, these are the various adjustments that we need to do whenever we are accounting for retirement of a partner. I want every one of you to go through this once. सर अकाउंट में थ्योरी भी आएगा क्या? ये सब आ सकता है, 20 मार्क्स के लिए थ्योरी है। डन एवरीवन? Ascertainment of new PSR and gaining ratio. New PSR, the ratio in which continuing partners, that is the partners other than outgoing one, decide to share the future profits and losses, is known as new profit sharing ratio. Note, unless otherwise agreed, it is presumed that the continuing partners acquire the outgoing partner's share in their old profit sharing ratio. So the continuing partners to share profits in the old ratio. वेरी सिंपल। अगर कुछ भी बोला हुआ नहीं है क्वेश्चन में, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर शेयरिंग देयर न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, if the ratio was 3:2:1 and if nothing is given in the question, that means after retirement A and B are going to share their profits in the ratio of 3:2 itself. I hope you got this. Next, gaining ratio, the ratio in which continuing partners acquire the outgoing or retire or deceased partner's share is called as gaining ratio. The ratio is calculated by taking out the difference between new PSR and old PSR. Simple. Sacrificing कैसे निकालेंगे? old minus new, gaining new minus old. Unless otherwise agreed, it is presumed that continuing partners gain in their old profit sharing ratio. अगर कुछ भी बोला हुआ नहीं है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ओल्ड PSR रहेगा वही उनका गेनिंग रेशियो रहेगा। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सभी को? चलो नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Treatment of goodwill. When an existing partner of a firm decides to retire from the firm, the continuing partners will gain in the future profits. The continuing partner who gains by acquiring an additional right to share future profit must compensate the outgoing partner who sacrifices by foregoing his right to share future profits. मुझे सिंपल बताना दोस्तों, अप्लाई योर ब्रेन एंड लेट मी नो, जब भी रिटायरमेंट होता है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है? मुझे ये बताना दोस्तों, जब भी रिटायरमेंट होता है कौन सेक्रीफाइस करता है मोस्ट प्रोबेबली और कौन गेन करता है? कौन सेक्रीफाइस करता है, कौन गेन करता है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 3 लोग रोटी खा रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब सी अगर रिटायर हो रहा है तो उसको आज के बाद उस रोटी में हिस्सा मिलेगा क्या? नहीं। तो रिटायरिंग पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग, और वो रोटी जो पहले 3 लोग खाते थे अब 2 ही लोग खाएंगे, ए और बी। दैट मीन्स कौन गेन कर रहा है? ए एंड बी, ठीक है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन, 100% ऐसा ही होगा, कांट बी सेड, ठीक है। हो सकता है ए और बी में से कोई एक ही गेन कर रहा हो या दोनों गेन कर रहे हो, ठीक है। सो गाइज वेरी सिंपल, रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए उसको गुडविल का शेयर मिलेगा, और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स
दे गेन इन पार्टनरशिप, ठीक है, प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स में वो गेन कर रहे हैं आप फ्यूचर में, तो उन्हें बियर करना होगा और रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देना होगा। फैंटास्टिक। नेक्स्ट, आउटगोइंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस। नेक्स्ट, क्रेडिट फॉर आउटगोइंग पार्टनर्स फुल शेयर ऑफ गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर बाय डेबिटिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। क्या एंट्री यूज करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट के लिए? वही अपनी मैजिकल एंट्री। ये एक लौती एंट्री ऐसी है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे आप एडमिशन पढ़ लो, चाहे रिटायरमेंट पढ़ लो, चाहे डेथ पढ़ लो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ लो, ठीक है। गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है क्या? बात करते हैं हिडन गुडविल। भले ही नाम यहाँ पे हिडन गुडविल दिया हुआ होगा, लेकिन रिटायरमेंट में कोई हिडन गुडविल नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, जो एडमिशन में होती है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल फंडा है। यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बता देगा कि उसे कितने पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी और सी पार्टनर है, सी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरमेंट के वक्त उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है 4,50,000 क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म ने उस पार्टनर को 4,50,000 पे करने हैं, बट द पार्टनरशिप फर्म इज पेइंग 5 लाख रुपीज। दैट मीन्स द एक्सट्रानियस अमाउंट of 50,000 being paid by the partnership firm to the retiring partner is nothing but hidden goodwill. Very simple. So guys, whenever a partnership firm pays anything in excess of capital balance to the retiring partner, that extraneous amount is nothing but hidden goodwill. I hope you are getting my point. Let's read it in the theory as well. If the firm has agreed to settle the account of a retiring or a deceased partner by paying him a lump sum amount, then the amount paid to him in excess of his capital share in reserves, revaluation account, etc. shall be treated as a share of goodwill. Very important. Example, XYZ are partners. Z retires his capital account after making adjustment for reserves. Profit on revaluation exists as rupees 1 lakh. X and Y have agreed to pay him rupees 1,50,000 in full settlement of his claim. It implies that 50,000 is Z's share in the goodwill of the firm. This will be treated by debiting rupees 50,000 in the capital account of X and Y in their gaining ratio and crediting Z's capital account. 1 लाख रुपया देना था, कैपिटल बैलेंस ने 1 लाख बताया है देना है, 1.5 लाख रुपया दिए जा रहे हैं, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया गया है। क्या करेंगे? ये 50,000 जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं दोस्तों, इट विल बी ट्रीटेड एज शेयर ऑफ गुडविल। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, सेम जो हमने पढ़ा था एडमिशन में। At the time of retirement of a partner, the total assets and liabilities are revalued so that the due share of an outgoing partner in the profit or loss arising from such revaluation may be ascertained and adjusted in his capital account. For journal entries, refer previous chapter. अब previous chapter refer करके तो यहाँ आए हैं, ठीक है। Next, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या करेंगे? सो गाइस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एनी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस exist in the books of the firm. This should be transferred to the capital account of all the partners, including outgoing partner, in their old profit sharing ratio, so that the due share of an outgoing partner in the reserves, accumulated profits, losses up to the date of retirement gets adjusted in his capital account. And guys, very important, adjustment of capital. The adjustment of capital shall be done in the same way as provided in the chapter of admission of a partner. मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था, एक बार हम लोग एडमिशन पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर ज्यादा कोई अलग एडजस्टमेंट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इट इज ऑल रिलेटेड, ठीक। चलो आ जाओ। डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो देना पड़ेगा, शगुन देना पड़ेगा ना उसको, जा रहा है वो। तो दोस्तों, शगुन कैसे दिया जाए रिटायरमेंट का? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज अराइव्ड एट
आफ्टर कंसिडरिंग द बैलेंसेस इन द कैपिटल एंड द करंट अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसमें प्रॉफिट का भी शेयर आना चाहिए जब तक रिटायर नहीं होता है, गुडविल का शेयर आना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आना चाहिए, ड्रॉविंग्स आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ एनी, ये सारा देना होगा। कैसे देंगे? आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स असेट्स अवेलेबल विद द फर्म, अगर कोई बैंक बैलेंस होगा उसमें से दे देंगे, या तो फिर सी जा रहा है, सी की जगह डी को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, सी की जगह डी को ले लिया तो डी का कैपिटल आएगा, भरतनाट्यम करना है, ठीक है, डी का कैपिटल आएगा, सी को दे दिया जाएगा, ठीक है। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ द एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, पैसे नहीं है तो जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस उनसे भी एडिशनल कैपिटल मंगाकर रिटायरिंग पार्टनर को दे सकते हैं, ठीक। इन अ लमसम वैल्यू आफ्टर सम टाइम, भाई आज पैसे नहीं है बाद में देंगे, इंटरेस्ट के साथ दे देंगे, ठीक है, और लास्ट है इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, यस, फायरवॉल देना होगा, यस, रिटायरिंग पार्टनर है भाई, फायरवॉल, फायरवॉल तो जरूरी है। चलो सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, in case the account of the retiring partner is not settled immediately and there is no agreement to guide the rights of the outgoing partner, section 37 of the Indian Partnership Act applies. अगर आप रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा नहीं देते हो तो सेक्शन 37 पिक्चर में आ जाएगा। सेक्शन 37 क्या कहता है चेक कीजिएगा, एज पर दिस सेक्शन when any member of the firm ceases to be a partner and the continuing partners carry on the firm's business with property of the retired partner without any final settlement, then in the absence of any such contract to the contrary, the outgoing partner is entitled at the option of himself, this is very important, to such profits as made since then as may be attributed to the use of property or interest at the rate of 6% per annum। दोस्तों या तो मान लो एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, आपने उसके पैसे नहीं दिए, अगर आप उसके पैसे नहीं देते सेक्शन 37 पिक्चर में आ जाएगा। सेक्शन 37 क्या कहता है, अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए तो उस पैसे की वजह से आप जितना भी पैसा कमा रहे हो तो वो देना होगा, उस पर जितना भी प्रॉफिट होगा देना होगा, या फिर 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना होगा एट दी ऑप्शन ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर के मन पे कि दोनों में से वो क्या लेना चाहेगा। नेचुरल सी बात है, अगर समझदार व्यक्ति होगा तो दोनों में जो ज्यादा अमाउंट हो रहा है वो लेने वाला है, ठीक है। तो या तो अमाउंट पे जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट, या तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है क्या? आ जाओ दोस्तों, प्रिंस जा डीजे चाचा को मेरा साष्टांग प्रणाम। क्यों चाचा बना रहा है भाई, क्यों बुरा कर रहा है मेरे को, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा प्रिंस? हाँ क्या बिगाड़ा यार मैंने तेरा, खामा का उम्र मत बढ़ा यार। चलो आ जाओ दोस्तों, रेशियोज के क्वेश्चन करते हैं आज, और टाइम मिलेगा तो हम लोग ये भी कर लेंगे, गुडविल के भी क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। Alok, Bhaskar and Chetan are partners sharing in the ratio of 3:2:1। Calculate the new ratio if Alok retire। Alok गायब हो गया तो क्या होगा न्यू रेशियो, भास्कर और चेतन बच जाएंगे। कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, 2:1। अगर भास्कर रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया तो क्या बचेगा? 3:1। और अगर चेतन रिटायर हो गया तो क्या हो जाएगा? 3:2।
बताओ, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, कर लो बात, कर लो बात। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा मैं स्कूल में बैठा हूँ कि सीए फाउंडेशन के क्लास में बैठा हूँ। If nothing is given, old ratio itself is the new ratio. I hope everyone is getting this. अब पूछूंगा नहीं, कोई शक है क्या? क्योंकि अगर इसमें भी शक आ रहा है, इसमें भी आपको शक आ रहा है, तो इट्स टाइम टू गो टू स्कूल एंड लर्न हमटी डमटी। ठीक है ना? इसमें भी अगर डाउट आ रहा है बच्चों, प्लीज गो टू स्कूल एंड लर्न हमटी डमटी और बाबा ब्लैक शेप, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है क्या? सर और भी दो बहुत सारी पोयम थी, आपने दो का ही क्यों नाम लिया? क्योंकि भाई मेरे को ये दो ही आती हैं, मेरे को ये दो ही आती है भाई, ज्यादा पूछो मत। नेक्स्ट, आरव बनताइन चुनमुन। ओ हो, क्या नाम है दोस्तों, चुनमुन। आरव बनताइन चुनमुन are partners in the ratio of 3:2:1. Arav retires and his share is taken over by the remaining partners as follow. ठीक है, आरव का शेयर क्या था? 3/6। ये 3/6 कौन लेकर जा रहा है? 2/6 बनता लेके जा रहा है, और चुनमुन 1/6 लेकर जा रहे हैं। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, तो भैया क्या होगा न्यू रेशियो? कौन कौन है पार्टनर? एक है बंता और दूसरा है चुनमुन। बंता के पास पहले कितना था? बंता के पास पहले 2/6 था। और चुनमुन के पास कितना था? चुनमुन के पास 1/6 था। अब बंटा को आरव के पास से कितना आया? 2/6, तो 2/6 ऐड हो जाएगा, और चुनमुन को कितना आया? 1/6। तो ये हो गया दोस्तों 4/6 और 2/6, and therefore new PSR will be 2:1. सर पीएल सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में क्यों जाता है? मूसा भाई आगे आएगा, सही समय का इंतजार करो मूसा भाई। ठीक है क्या? दीपू ताशा एंड हनी, वाह क्या नाम है यार, कितना प्यारा नाम है, ताशा, हनी। ये हनी नहीं आना चाहिए था यार गाइस, यादें ताजा हो गई सब अब। चलो एनीवेज, दीपू ताशा एंड हनी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2:1. Tasha retires and his share was acquired by Deepu and Honey in the ratio of 2:1. Calculate new ratio. ठीक है, सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे होगा चेक? आ जाओ दोस्त। न्यू रेशियो कौन कौन है भाई बचा हुआ पार्टनर? ताशा रिटायर हो रही है, यानी दीपू और हनी। दीपू का पहला रेशियो कितना था? दीपू का पहला रेशियो कितना था? 3/6। ठीक है, 3/6 इज द ओल्ड रेशियो, और ले कितना रहा है वो? 3/6 प्लस, अब जो दीपू का रेशियो है, नहीं दीपू नहीं, ताशा का रेशियो है, ताशा का रेशियो क्या है? 2/6। 2/6 का दीपू कितना लेगा? 2/6 इंटू 2/3, ये कितना हो गया? 3/6 प्लस
इंटू 2 कर दिए तो 4/18। इंटू 3 अगर कर देंगे इसको कॉमन डिवाइजर करने के लिए 3/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा 13, ऊपर आ जाएगा 9 + 4 13/18। 13/18। और अब बात करेंगे हनी की। हनी का कितना था पहले 1/6 और कितना मिलेगा उसको 2/6 का 1/3। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2/18। 1/6 प्लस 2/18। ठीक है, तो कॉमन डिवाइजर के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो वो हो जाएगा 5/18। देयरफॉर न्यू PSR is equal to 13:5। I hope you got these. I hope you got these. ठीक है क्या? चलो ये 4 क्वेश्चन है, करो एकदम फटाफट। ये 4 क्वेश्चन है, करो जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी करो। I hope everyone has done these. क्या निकालना है भाई? गेनिंग रेशियो निकालना है। कितना आया फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में आएगा 1:2। आया क्या चेक करो। सेकंड इसमें क्या होगा? सिर्फ ए और सी गेन कर रहे हैं, ओनली ए एंड सी इज गेनिंग। क्या रेशियो? 1:1। इसमें आ जाएगा 3:5 और आखिरी में आ जाएगा 1:8। ठीक है, क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, चेक करो। आया क्या सभी का? गिव मी थम्स अप। शिव प्रसाद क्या डाउट है बेटा, बोल। सभी को आया क्या, ये चेक करो। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। तो रेशियो का काम खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं गुडविल का क्वेश्चन। अंटू बंटू एंड चिंटू,
where in a partnership sharing profits and losses in 3:4:3. The accounts of the firm made up to the 31st March every year. The partnership provided inter alia that on the retirement of a partner, the goodwill is to be valued at 3 years purchase of the average profit of last 4 years up to the date of retirement, after deducting interest at the rate of 12% per annum on capital employed and remuneration of 2000 per month to each partner. On 1st April 2020, Antu retired and it was agreed on his retirement to adjust the goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet. गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इसका मतलब क्या करना होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. It was agreed that the capital employed would be 6,50,000. Bantu and Chintu were to continue the partnership sharing profits and losses equally. The new ratio 1/2, 1/2. Old ratio 3:4:3. The following were the amounts of profits of earlier years before charging salary to partners and interest on capital employed: 16-17, 17-18, 18-19, and 19-20. You are required to compute the value of goodwill and show the adjustment thereof in the books of the firm. ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया. पहले तो प्रॉफिट हमें रेक्टिफाई करना होगा. वाई? क्योंकि सैलरी चार्ज करनी थी नहीं की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दोनों देकर नए प्रॉफिट निकाल लेंगे. फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल कर उनका गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे. गेनिंग पार्टनर का जो भी शेयर हो रहा है, ठीक है, उनको डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे जो भी शेयर बनता है. ठीक. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे. I want every one of you to read the question twice. Sorry. ठीक है गाइस, तो कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? देखो, हर साल का सैलरी फिक्स है. सैलरी कितना फिक्स है? 24. कितना है? 2000 पर मंथ. तो 24,000 एक पार्टनर को देंगे तो 3 पार्टनर को हो जाएगा 72,000 पर ईयर. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा हर साल? 6,50,000 इंटू 12%. ठीक है, 78,000 उसमें से लेस हो जाएगा. तो क्या करते हैं, पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं. 2,60,000 प्लस 2,75,000 प्लस 2,65,000 प्लस 2,80,000, टोटल 10,80,000 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे. ये आ जाएगा 2,70,000. अब ये है मेरा एवरेज प्रॉफिट, उसमें से ये दोनों भी लेस कर देंगे. 2,70,000 माइनस सैलरी 72,000 फॉर 1 ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस 78,000 फॉर 1 ईयर. 1,20,000 आएगा दोस्तों मेरा मेरा गुडविल आ रहा है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स परचेज. तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 3,60,000 विल बी माई शेयर ऑफ गुडविल. पार्टनरशिप 10 से 15 मार्क के लिए आता है. अच्छा, 3,60,000 ये गुडविल का वैल्यू है. कितना शेयर मंगाएंगे? कितना शेयर मंगाएंगे? देना कितना है रिटायरिंग पार्टनर को? जो उसका हिस्सा था. कौन रिटायर हो रहा है? चिंटू. चिंटू का हिस्सा क्या था? 3/10. तो 3,60,000 इंटू 3/10 1,08,000 रुपया मंगाया जाएगा.
ठीक है क्या? ठीक है क्या एवरीवन? चलो करते हैं इसको, आ जाओ दोस्तों, आ जाएंगे सभी लोग। आ जाइएगा सभी लोग। चलो, वैल्यू ऑफ गुडविल 3 years परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी। देंगे ना, रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, गेनिंग पार्टनर से लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा लास्ट 4 years का? सबसे पहले ये पूरे प्रॉफिट का एडिशन कर देंगे और फिर उसमें से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों माइनस माइनस होगा। कैसे बनेगा फॉर्मूला? चेक एवरीवन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years इज 2,60,000 plus 2,75,000 plus 2,65,000 plus 2,80,000 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया मेरा 1 साल का एवरेज प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट। फिर उसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और फिर सैलरी को लेस कर देंगे 24,000 ऑफ ईच पार्टनर। तो वो कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों 2,70,000 माइनस 78,000 माइनस 72,000। दैट विल बी 1,20,000। ये क्या हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। कितने ईयर्स परचेस है? 3 years परचेस। तो 1,20,000 इंटू 3,60,000 शुड बी वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल। यस उज्जवल, रिकॉर्डेड देख सकते हो। आरटीपी एमटीपी बैच कैसे ज्वाइन करें? एनरोल कर लो, बैच दिखेगा, सर्च करो, एनरोल कर लो। ना रिटायरिंग पार्टनर कौन है? चिंटू। चिंटू का शेयर कितना है? 3/10। तो 3,60,000 इंटू 3/10 ये हो जाएगा 1,08,000। ठीक है, कितना देना है चिंटू को? 1,08,000 रुपया। ठीक है, अब देंगे कैसे? गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मुझे ये बताओ, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? कंटिन्यूइंग पार्टनर। उनके रेशियो हमने निकाले क्या? नहीं, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो? आ जाएंगे दोस्तों, 5-6 लाइन छोड़ के लिखेंगे वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अंटू। अंटू कौन है? अंटू कौन है? अंटू इज कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन रिटायर हो रहा है? ओ हो ओ हो गाइस, चिंटू नहीं अंटू रिटायर हो रहा है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रेशियो है। मैं इतनी देर तक ये समझ रहा था कि चिंटू रिटायर हो रहा है, बट गाइस चिंटू नहीं अंटू रिटायर हो रहा है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अंटू का भी 3/10 था और चिंटू का भी 3/10 था, तो अभी तक जो भी किया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस 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 गाइस, अंटू रिटायर हो रहा है। चलो, तो अंटू का न्यू रेशियो क्या होगा? 0। तो अंटू 0 माइनस 3/10, 3/10 सेक्रीफाइसिंग। बंटू 1/2 न्यू रेशियो माइनस 4/10 ओल्ड रेशियो 1/10 गेनिंग। और गाइस चिंटू न्यू रेशियो 1/2 ओल्ड रेशियो 3/10 2/10 gaining. So guys, Antu is sacrificing 3/10 and Bantu and Chintu are gaining in the ratio of 1:2। क्या हो गया गेनिंग रेशियो? 1:2। ठीक है, सो गाइस कितना देंगे? 1,08,000
1,08,000 is to be borne by Bantu and Chintu in the ratio of 1:2. तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 36,000. एडजस्टमेंट एंट्री. Bantu capital account debit 36,000. Chintu's capital account debit 72,000. To sacrificing partner, which is retiring partner, and two's capital 1,08,000 being goodwill adjusted in partner's capital account. आई होप सभी को समझ में आया. ही किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? चलो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं. अब कल से फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग चालू करने वाले हैं. कल से हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू करेंगे. और कल होमवर्क भी दूंगा मैं. आई विल बी गिविंग होमवर्क टुमारो. ठीक है. चलो, thank you so much guys. All the very best for your RTP MTP batch which is commencing today in the next 15 minutes. Thank you so much guys. नहीं, आज नहीं है ना. आज नहीं होगा. लेट मी चेक आज का शेड्यूल क्या है. आज का शेड्यूल क्या है. यस, 1:45 से स्टार्ट होने वाला है. टुडे सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1:45 PM. ओके. ग्रेट गाइस, कीप इट अप. All the very best. Thank you so much guys. Have a great time. See you soon. Bye bye.